Chapter 2. Oceans and Continents. The ocean is everything. It covers 7/10 of the terrestrial globe. Its breath is pure and healthy. It is an immense desert, where man is never lonely. For he feels life stirring all around. The ocean is the vast reservoir of nature. The globe began with the ocean, so to speak, and who knows if it will not end with it. Jules Verne, 1870. अध्याय 2. महासागर और महाद्वीप. महासागर ही सब कुछ है. ये पृथ्वी के 7/10 हिस्से को कवर करता है. इसकी सांस शुद्ध और स्वस्थ है. यह एक विशाल रेगिस्तान है, जहां मनुष्य कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसे चारों ओर जीवन की हलचल महसूस होती है. महासागर प्रकृति का विशाल भंडार है. ग्लोब की शुरुआत महासागर से हुई, इसलिए कहा जा सकता है, और कौन जानता है कि यह इसके साथ ही खत्म नहीं होगा. जूल्स वर्ने, 1870. Figure 2.1 The Earth seen from space, photographed by the Lunar Reconnaissance Orbiter. The view is centered on the Pacific Ocean, with Africa to the left, India and part of Asia at the top, Australia to the right, and Antarctica at the bottom. चित्र 2.1 अंतरिक्ष से देखी गई पृथ्वी, लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर द्वारा ली गई तस्वीर. दृश्य प्रशांत महासागर पर केंद्रित है, जिसमें बाईं ओर अफ्रीका, ऊपर भारत और एशिया का कुछ भाग, दाईं ओर ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका है. Let us return to our globe and rotate it gently. Or look at the picture of the Earth seen from the moon. What is the most widespread color you see? Blue, obviously, but what does it represent? You must have guessed the answer. It is water. This means that most of the Earth's surface is actually covered with water, almost 3/4 of the surface, in fact. That is why, when seen from outer space, the Earth appears mostly blue. Indeed, early astronauts lovingly called the Earth the blue planet. The largest water bodies we see on the globe are called oceans. आइए हम अपने ग्लोब पर वापस लौटें और इसे धीरे से घुमाएं. या चंद्रमा से देखी गई पृथ्वी की तस्वीर देखें. आपको सबसे ज्यादा कौन सा रंग दिखाई देता है? नीला, जाहिर है, लेकिन ये क्या दर्शाता है? आपने जवाब का अनुमान लगा लिया होगा. ये पानी है. इसका मतलब है कि पृथ्वी की ज्यादातर सतह वास्तव में पानी से ढकी हुई है. वास्तव में सतह का लगभग 3/4 हिस्सा. यही कारण है कि बाहरी अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी ज्यादातर नीली दिखाई देती है. दरअसल शुरुआती अंतरिक्ष यात्रियों ने प्यार से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा था. ग्लोब पर हम जो सबसे बड़े जल निकाय देखते हैं, उन्हें महासागर कहा जाता है. But in the picture of the Earth, figure 2.1, you can see at least one other color, brown. This color is that of land, which covers a little over 1/4 of the globe. A large body of land is called a land mass, and a large continuous expanse of land is called a continent. Both oceans and continents play a vital role in shaping the climate of the Earth. They affect all aspects of life, including all plants and animals, and therefore, human life too. We see their impact throughout our history and culture, and in our daily lives. लेकिन पृथ्वी के चित्र 2.1 में आप कम से कम एक और रंग देख सकते हैं, भूरा. ये रंग भूमि का है, जो पृथ्वी के 1/4 से थोड़ा ज्यादा हिस्से को कवर करता है. भूमि के एक बड़े हिस्से को भूमि द्रव्यमान कहा जाता है, और भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है. महासागर और महाद्वीप दोनों ही पृथ्वी की जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिसमें सभी पौधे और जानवर शामिल हैं, और इसलिए मानव जीवन भी. हम अपने इतिहास और संस्कृति में और अपने दैनिक जीवन में उनका प्रभाव देखते हैं. Don't miss out. The emblem of the Indian Navy contains the motto Sam no Varuna, pronounced Sham no Varuna, which means, be auspicious to us, O Varuna.
This is an invocation to Varuna, a Vedic deity associated with the oceans, the sky, and water in general. इसे मिस न करें। भारतीय नौसेना के प्रतीक में आदर्श वाक्य सम नोः वरुणः, उच्चारण शम नो वरुणः है, जिसका अर्थ है हे वरुण, हमारे लिए शुभ बनो। यह वरुण का आह्वान है, जो समुद्र, आकाश और सामान्य रूप से पानी से जुड़े वैदिक देवता हैं। The distribution of water and land on the earth. As it happens, oceans and continents are not distributed equally between the northern and southern hemispheres. पृथ्वी पर जल और भूमि का वितरण जैसा कि होता है, महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के बीच समान रूप से वितरित नहीं हैं। Figure 2.2. Maps of the Earth is seen from above the North Pole, left, and above the South Pole, right. चित्र 2.2 उत्तरी ध्रुव बाएं और दक्षिणी ध्रुव दाएं से ऊपर से देखे गए पृथ्वी के मानचित्र। Let us examine the two maps in figure 2.2. Here too, the blue areas consist of oceans, along with their smaller extensions, which have various names, sea, bay, gulf, etc. आइए चित्र 2.2 में दिए गए दो मानचित्रों की जांच करें। यहाँ भी नीले क्षेत्रों में महासागर और उनके छोटे छोटे विस्तार शामिल हैं, जिनके विभिन्न नाम हैं समुद्र, खाड़ी इत्यादि। ओशन लाइफ, कोरल रीफ, a starfish on a sea anemone. Ocean life, coral reef, a starfish on a sea anemone. महासागरीय जीवन, मूंगा चट्टान, समुद्री एनीमोन पर एक तारा मछली। शार्क, sperm whale, mother and baby. Dolphins, shallow coral reef with colorful tropical fish. Shark, sperm whale, माँ और बच्चा। Dolphin, रंगीन उष्णकटिबंधीय मछली के साथ उथली मूंगा चट्टान। एल्गी, एम्परर पेंगुइन्स, बोने सी टर्टल। शैवाल, सम्राट पेंगुइन, बोनेयर समुद्री कछुआ। The oceans together hold most of the water available on the planet. But this seawater is salty and unfit for consumption by most land animals, including humans. On the other hand, freshwater makes up a very small proportion of the planet's water resources. It is found in glaciers, rivers, lakes, in the atmosphere and also underground. The last is called groundwater. महासागर मिलकर ग्रह पर उपलब्ध अधिकांश पानी को धारण करते हैं, लेकिन ये समुद्री जल खारा है और मनुष्यों सहित अधिकांश भूमि जानवरों के लिए पीने योग्य नहीं है। दूसरी ओर, मीठे पानी का ग्रह के जल संसाधनों में बहुत कम हिस्सा है। ये ग्लेशियरों, नदियों, झीलों, वायुमंडल में और भूमिगत अंतिम को भूजल कहा जाता है में पाया जाता है। Oceans. On the world map in figure 2.3 on page 32, we can observe 5 oceans: the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean and the Southern or Antarctic Ocean. Although we have listed 5 oceans, it is clear from the map that they are not really separate. The lines that divide them on the map are no more than conventions. The natural world does not follow such boundaries. Seawater, for example, constantly flows across different oceans, sustaining a rich diversity of marine life. Many plant and animal species can be found across multiple oceans. महासागर, पृष्ठ 32 पर चित्र 2.3 में विश्व मानचित्र पर हम 5 महासागर देख सकते हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी या अंटार्कटिक महासागर। हालांकि हमने 5 महासागरों को सूचीबद्ध किया है, लेकिन मानचित्र से यह स्पष्ट है कि वे वास्तव में अलग नहीं हैं। मानचित्र पर उन्हें विभाजित करने वाली रेखाएं रूढ़ियों से अधिक कुछ नहीं हैं। प्राकृतिक दुनिया ऐसी सीमाओं का पालन नहीं करती है। उदाहरण के लिए, समुद्री जल लगातार विभिन्न महासागरों में बहता है, जिससे समुद्री जीवन की समृद्ध विविधता बनी रहती है।
कई पौधे और पशु प्रजातियां कई महासागरों में पाई जा सकती हैं। मरीन, रिलेटेड टू और फाउंड इन द ओशंस एंड सीज। समुद्री, महासागरों और समुद्रों से संबंधित या उनमें पाया जाने वाला। फ्लोरा, द प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम। वनस्पति, किसी विशेष क्षेत्र या समयावधि का वनस्पति जीवन। द मरीन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स कॉल्ड algae and all kinds of seaweeds. The marine fauna consists of thousands of species of colorful fish, dolphins, whales, and countless mysterious deep-sea creatures. Each part of the ocean, from the sunlit surface to the dark depths, has its own diverse life forms. समुद्री वनस्पतियों में शैवाल नामक छोटे पौधे और सभी प्रकार के समुद्री शैवाल शामिल हैं। समुद्री जीवों में रंगीन मछलियों, डॉल्फिन, व्हेल और अनगिनत रहस्यमय गहरे समुद्री जीवों की हजारों प्रजातियां शामिल हैं। समुद्र के प्रत्येक भाग में सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराई तक अपने अपने विविध जीवन रूप हैं। फॉना, द एनिमल लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम। जीव जंतु, किसी विशेष क्षेत्र या समयावधि का पशु जीवन। फिगर 2.3, a world map showing the 5 oceans, their conventional boundaries, and the continents. चित्र 2.3, 5 महासागरों, उनकी पारंपरिक सीमाओं और महाद्वीपों को दर्शाता विश्व मानचित्र। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन, Indian Ocean. It is visible on the map that the Pacific Ocean is the largest of all, followed by the Atlantic Ocean. The Indian Ocean is the third largest, while the Southern Ocean is the fourth. The smallest one is the Arctic Ocean. मानचित्र पर देखा जा सकता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा है, जबकि दक्षिणी महासागर चौथा है। सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। डोंट मिस आउट। एज द मैप ऑफ ओशंस मेक्स क्लियर, द मेन लिमिट्स ऑफ द इंडियन ओशन आर एशिया टू द नॉर्थ, अफ्रीका टू द वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट, अपार्ट फ्रॉम द सदर्न ओशन इन द साउथ। जैसा कि महासागरों के मानचित्र से स्पष्ट है, हिंद महासागर की मुख्य सीमाएं उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया हैं। इसके अलावा दक्षिण में दक्षिणी महासागर है। ऑन आइदर साइड ऑफ इंडिया वी फाइंड 2 पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। भारत के दोनों ओर हमें हिंद महासागर के 2 भाग मिलते हैं, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। फिगर 2.4 ऑन द राइट। This map of India is the same as figure 1.6, but with the addition of the Arabian Sea and the Bay of Bengal. Also marked are India's 2 major groups of islands. See subsection on islands further below. चित्र 2.4 दाईं ओर। भारत का यह मानचित्र चित्र 1.6 जैसा ही है, लेकिन इसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को भी शामिल किया गया है। साथ ही भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूहों को भी चिन्हित किया गया है। नीचे द्वीप पर उपखंड देखें। ओशंस एंड डिजास्टर्स, महासागर और आपदाएं। Returning to the picture of the earth at the start of this chapter, you may have noticed white shapes across the globe. Did you guess what they are? They are large masses of clouds. Such clouds bring rain to the continents. For instance, the monsoon rains we in India expect every summer originate in the ocean. Without such rains, our agriculture and all life will suffer. But oceans often also give rise to storms, violent events with extreme rainfall or very strong winds, such as cyclones, which can cause widespread damage to coastal regions of the world. इस अध्याय की शुरुआत में पृथ्वी की तस्वीर पर लौटते हुए आपने दुनिया भर में सफ़ेद आकृतियां देखी होंगी। क्या आपने अनुमान लगाया कि वे क्या हैं? वे बादलों के बड़े समूह हैं। ऐसे बादल महाद्वीपों पर बारिश लाते हैं। उदाहरण के लिए,
भारत में हर गर्मियों में होने वाली मानसून की बारिश समुद्र से आती है। ऐसी बारिश के बिना हमारी कृषि और सभी जीवन को नुकसान होगा। लेकिन महासागर अक्सर तूफानों को भी जन्म देते हैं। अत्यधिक बारिश या बहुत तेज हवाओं के साथ हिंसक घटनाएं, जैसे कि चक्रवात, जो दुनिया के तटीय क्षेत्रों को व्यापक नुकसान पहुंचा सकते हैं। A tsunami is another natural disaster that originates in the ocean. It is a huge and powerful wave generally caused by a strong earthquake or a volcanic eruption at the bottom of the ocean. Tsunamis can travel thousands of kilometers and submerge coastal areas, causing widespread damage. सुनामी एक और प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र में उत्पन्न होती है। यह एक विशाल और शक्तिशाली लहर है जो आमतौर पर समुद्र के तल पर एक मजबूत भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होती है। सुनामी हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकती है और तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर सकती है, जिससे व्यापक क्षति हो सकती है। Don't miss out. On the 26th of December 2004, India and another 13 countries around the Indian Ocean were struck by a powerful tsunami caused by an earthquake in Indonesia. More than 2 lakh people lost their lives. In India, the Andaman and Nicobar Islands, see figure 2.4 above, and also the subsection Islands, further below, and the coasts of Tamil Nadu and Kerala were severely affected and suffered much damage and loss of life. 26 दिसंबर 2004 को भारत और हिंद महासागर के आसपास के 13 अन्य देश इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आए शक्तिशाली सुनामी की चपेट में आ गए। 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऊपर चित्र 2.4 देखें और नीचे उपखंड द्वीप भी देखें, और तमिलनाडु और केरल के तट गंभीर रूप से प्रभावित हुए और उन्हें बहुत नुकसान हुआ और जान माल का नुकसान हुआ। Such tsunamis are rare but very destructive. Luckily, they can often be detected before they hit a coast. Many countries collaborate in such early warning systems. There is, in particular, an Indian Ocean Tsunami Warning System, to which many countries, including India, contribute. This helps to take measures to protect lives and property. ऐसी सुनामी दुर्लभ हैं, लेकिन बहुत विनाशकारी हैं। सौभाग्य से उन्हें अक्सर तट पर पहुंचने से पहले ही पता लगाया जा सकता है। कई देश ऐसी पूर्व चेतावनी प्रणाली में सहयोग करते हैं। विशेष रूप से एक हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली है, जिसमें भारत सहित कई देश योगदान करते हैं। इससे जान माल की सुरक्षा के लिए उपाय करने में मदद मिलती है। Events that lead to loss of life and property are handled under disaster management. India has its own National Disaster Management Authority to deal with all kinds of disasters. We will see more examples in the next chapter. आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ऐसी घटनाओं को संभाला जाता है जिनसे जान माल का नुकसान होता है। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए अपना स्वयं का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। हम अगले अध्याय में और उदाहरण देखेंगे। कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों। Continents are visible on the map of oceans, figure 2.3. How many can you count? The answer is not so simple, as they can be counted in several ways. Depending on our choice, we may list any number of continents between 4 and 7. Here is why. महासागरों के मानचित्र पर महाद्वीप दिखाई देते हैं। चित्र 2.3। आप कितने गिन सकते हैं? इसका उत्तर इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें कई तरीकों से गिना जा सकता है। अपनी पसंद के अनुसार हम 4 से 7 के बीच किसी भी संख्या में महाद्वीपों को सूचीबद्ध कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि क्यों। North America and South America are generally considered to be 2 continents, but if seen as a single landmass, they can also be considered as one. उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आमतौर पर 2 महाद्वीप माना जाता है, लेकिन अगर एक ही भूभाग के रूप में देखा जाए तो उन्हें एक भी माना जा सकता है।
Europe and Asia are generally considered as two continents, although the map makes it clear that they form a single landmass. For historical and cultural reasons, Europe's evolution has been very different from Asia's, which is why they can be seen as two continents. Geologists, however, often regard them as a single continent called Eurasia. यूरोप और एशिया को आमतौर पर दो महाद्वीप माना जाता है, हालांकि मानचित्र से यह स्पष्ट है कि वे एक ही भूभाग बनाते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का विकास एशिया से बहुत अलग रहा है। यही वजह है कि उन्हें दो महाद्वीपों के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि भूविज्ञानी अक्सर उन्हें यूरेशिया नामक एक महाद्वीप के रूप में देखते हैं। Africa and Eurasia are generally regarded as two continents, but sometimes as one. अफ्रीका और यूरेशिया को आमतौर पर दो महाद्वीप माना जाता है, लेकिन कभी कभी एक भी माना जाता है। Let us summarize the different counts in a table. आइए विभिन्न गणनाओं को एक तालिका में संक्षेपित करें। Count of continents in alphabetical order. महाद्वीपों की संख्या वर्णमाला क्रम में। 4 continents: Africa, Eurasia, America, Antarctica, Australia. 4 महाद्वीप: अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। 5 continents: Africa, America, Antarctica, Australia, Eurasia. 5 महाद्वीप: अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। 6 continents: Africa, Antarctica, Australia, Eurasia, North America, South America. This is reflected in figure 2.3 on page 32. 6 महाद्वीप: अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ये पृष्ठ 32 पर चित्र 2.3 में दर्शाया गया है। 7 continents: Africa, Antarctica, Asia, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। 7 महाद्वीप: अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। In practice, the last list of 7 continents is the one most widely adopted and used. व्यवहार में 7 महाद्वीपों की अंतिम सूची सबसे व्यापक रूप से अपनाई और उपयोग की जाने वाली सूची है। Don't miss out. You may have seen the 5 Olympic rings, one of the symbols of the Olympic Games. They symbolize the gathering of sportspeople from all over the world. The rings were chosen to represent 5 inhabited continents: Africa, America, Asia, Australia and Europe. आपने 5 ओलंपिक रिंग देखी होंगी, जो ओलंपिक खेलों के प्रतीकों में से एक हैं। वे दुनिया भर से खिलाड़ियों के एकत्र होने का प्रतीक हैं। रिंग को 5 बसे हुए महाद्वीपों अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। नाउ लेट अस लुक एट द डायग्राम ऑन पेज 36, which is based on the list of 7 continents. It does not show their actual shapes, but their relative sizes. अब आइए पृष्ठ 36 पर दिए गए आरेख को देखें, जो 7 महाद्वीपों की सूची पर आधारित है। यह उनके वास्तविक आकार नहीं दिखाता है, बल्कि उनके सापेक्ष आकार दिखाता है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, आइलैंड्स, द्वीप समूह। If you have carefully observed the 2 maps earlier in this chapter, figure 2.2 and 2.3, you may have noticed that the continents do not include all landmass. यदि आपने इस अध्याय में पहले दिए गए 2 मानचित्रों, चित्र 2.2 और 2.3 को ध्यान से देखा है, तो आपने देखा होगा कि महाद्वीपों में सभी भूभाग शामिल नहीं हैं। Some smaller pieces of land are left out. Surrounded by water on all sides, they are called islands. Continents are also surrounded by water, but because they are so large, they are not considered islands. There are lakhs of islands on the planet,
of very different sizes. कुछ छोटे छोटे भूभाग छोड़ दिए गए हैं जो चारों ओर से पानी से घिरे हैं, उन्हें द्वीप कहा जाता है। महाद्वीप भी पानी से घिरे हैं, लेकिन चूंकि वे बहुत बड़े हैं इसलिए उन्हें द्वीप नहीं माना जाता। ग्रह पर बहुत अलग अलग आकार के लाखों द्वीप हैं। Don't miss out. Greenland is the largest island in the world, located on a globe or a map. You would have to add the areas of the 10 largest states of India to reach its size. Greenland दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसे ग्लोब या मानचित्र पर खोजें। इसके आकार तक पहुंचने के लिए आपको भारत के 10 सबसे बड़े राज्यों के क्षेत्रों को जोड़ना होगा। India has more than 1,300 small islands. Those include two major groups, Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal and Lakshadweep Islands in the Arabian Sea, see figure 2.4. भारत में 1,300 से ज़्यादा छोटे द्वीप हैं। इनमें दो बड़े समूह शामिल हैं, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह। चित्र 2.4 देखें। Since 1981, the Indian Antarctica program has been exploring Antarctica, a continent with a very cold climate and harsh environment. See the white expanse at the bottom of figure 2.1, which is mostly ice. In 1983, India established its first scientific base station there, called Dakshin Gangotri. 2 more bases were established later. About 40 teams of Indian scientists have conducted research in this faraway region, especially on the evolution of climate and environment. The settlement where the scientists live has a library and even a post office. 1981 से भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम अंटार्कटिका की खोज कर रहा है, जो एक बहुत ही ठंडी जलवायु और कठोर वातावरण वाला महाद्वीप है। चित्र 2.1 के निचले भाग में सफ़ेद विस्तार देखें, जो ज़्यादातर बर्फ है। 1983 में भारत ने वहां अपना पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया, जिसे दक्षिण गंगोत्री कहा जाता है। बाद में 2 और बेस स्थापित किए गए। भारतीय वैज्ञानिकों की लगभग 40 टीमों ने इस सुदूर क्षेत्र में शोध किया है, खासकर जलवायु और पर्यावरण के विकास पर। जिस बस्ती में वैज्ञानिक रहते हैं वहाँ एक पुस्तकालय और एक डाकघर भी है। ओशंस एंड लाइफ, महासागर और जीवन। Oceans and continents are vital parts of the environment and affect most aspects of our lives, even if we do not notice it. We have mentioned that oceans send rain to the continents. This is part of the Earth's water cycle, which you will further study in science. महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं और हमारे जीवन के अधिकांश पहलुओं को प्रभावित करते हैं, भले ही हम इस पर ध्यान न दें। हमने उल्लेख किया है कि महासागर महाद्वीपों में बारिश भेजते हैं। ये पृथ्वी के जल चक्र का हिस्सा है, जिसके बारे में आप आगे विज्ञान में अध्ययन करेंगे। Without oceans, for instance, there would be no rainfall. The earth would be a desert. उदाहरण के लिए, महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी, पृथ्वी रेगिस्तान बन जाएगी। Moreover, more than half of the world's oxygen is produced by the ocean's flora, which is why they are called the planet's lungs. The oceans, therefore, play a crucial role in regulating the climate and sustaining life on Earth. Oceans have deeply impacted humanity in many other ways. From early times, people have used oceans and seas to migrate to other regions, to trade in all kinds of goods, to conduct military campaigns, and as a source of food through fishing. Oceans have also nourished the cultures of coastal people all over the world. Almost all of them have tales and legends about the sea, sea gods and goddesses, sea monsters and treasures from the sea, the ocean's dangers but also their blessings. इसके अलावा दुनिया की आधी से ज़्यादा ऑक्सीजन महासागरों की वनस्पतियों द्वारा उत्पादित की जाती है। यही वजह है कि उन्हें ग्रह के फेफड़े कहा जाता है। इसलिए महासागर जलवायु को विनियमित करने और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
महासागरों ने मानवता को कई अन्य तरीकों से गहराई से प्रभावित किया है। शुरुआती समय से लोगों ने महासागरों और समुद्रों का उपयोग अन्य क्षेत्रों में प्रवास करने, सभी प्रकार के सामानों का व्यापार करने, सैन्य अभियान चलाने और मछली पकड़ने के माध्यम से भोजन के स्रोत के रूप में किया है। महासागरों ने दुनिया भर के तटीय लोगों की संस्कृतियों का भी पोषण किया है। उनमें से लगभग सभी के पास समुद्री देवताओं और देवियों, समुद्री राक्षसों और समुद्र से खजाने के बारे में कहानियां और किंवदंतियां हैं। महासागरों के खतरे लेकिन उनके आशीर्वाद भी। डोंट मिस आउट। The United Nations has designated June 8 as World Oceans Day to remind us all of the major role the ocean plays in everyday life. It serves as the lungs of our planet, a major source of food and medicine and a critical part of the biosphere. Scientific studies have shown how the oceans are polluted by human activity. We throw several million tons of plastic waste into the oceans every year, choking marine life. There are several other forms of pollution. As a result, the marine environment is under threat. Overfishing, excessive fishing, is another cause for the decline of marine life. It is our collective responsibility to protect oceans for the future of the planet and of humanity. संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में नामित किया है, ताकि हम सभी को याद दिलाया जा सके कि महासागर रोजमर्रा की जिंदगी में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारे ग्रह के फेफड़ों, भोजन और दवा का एक प्रमुख स्रोत और जीवमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि महासागर मानवीय गतिविधियों से कैसे प्रदूषित होते हैं। हम हर साल कई मिलियन टन प्लास्टिक कचरा महासागरों में फेंकते हैं, जिससे समुद्री जीवन का दम घुटता है। प्रदूषण के कई अन्य रूप भी हैं। नतीजतन समुद्री पर्यावरण खतरे में है। अत्यधिक मछली पकड़ना समुद्री जीवन के पतन का एक और कारण है। ग्रह और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। बिफोर वी मूव ऑन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, The Earth's surface has vast water bodies called oceans and large land masses called continents. Oceans are interconnected. Continents may be counted in various ways. The most common count is 7. पृथ्वी की सतह पर विशाल जल निकाय हैं जिन्हें महासागर कहा जाता है और बड़े भूभाग जिन्हें महाद्वीप कहा जाता है। महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। महाद्वीपों की गिनती कई तरीकों से की जा सकती है। सबसे आम गिनती 7 है। The Northern Hemisphere has more land than the Southern Hemisphere. उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक भूमि है। Oceans support all kinds of marine life and play a critical role in the world climate. They are now seriously affected by human activity and need our collective protection. महासागर सभी प्रकार के समुद्री जीवन का समर्थन करते हैं और विश्व जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अब मानवीय गतिविधियों से गंभीर रूप से प्रभावित हैं और उन्हें हमारी सामूहिक सुरक्षा की आवश्यकता। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनके आंसर्स की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।